પાંડેસરા કૈલાશ નગર ચોકડી પાસે આવે 3 ક્લિનિકો પર પોલીસે છાપો મારી બોગસ ડોક્ટરોનો પર્દાફાશ કર્યો છે। પોલીસની પ્રાથમિક પૂછપરછમાં કોઈપણ પ્રકારની ડિગ્રી વગર ક્લિનિક ખોલી ડોક્ટરની પ્રેક્ટિસ કરી લોકોના આરોગ્ય સાથે ચેડા કરતા ઝડપાયેલા બોગસ ડોક્ટરોએ તેમને રાજ્ય સરકાર દ્વારા કોઈ અધિકૃત યુનિવર્સિટીમાં કોઈ માન્ય નથી તેવી BEMS સર્ટિફિકેટ આપી આ સર્ટિના આધારે એલોપેથિક દવા આપી પ્રેક્ટિસ કરી શકાય તેવો વિશ્વાસ આપી પૈસા પડાવનાર ડોક્ટર રસેશ ગુજરાતી સહિત 14 સામે પણ ગુનો દાખલ કર્યો છે। સુરત ઝોન 4 પોલીસ દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે। સુરત પોલીસ સાથે જ 1200 જેટલી નકલી ડિગ્રી પણ જપ્ત કરી છે। પાંડેસરા તુલસીધામ સોસાયટીમાં આવેલ કવિતા ક્લિનિક, ઈશ્વરનગરમાં આવેલ શ્રેયાંશ ક્લિનિક અને કૈલાસ ચોકડી પાસે રણછોડનગરમાં આવેલ પ્રિન્સ ક્લિનિકમાં પોલીસે દરોડા પાડ્યા હતા। ડોક્ટર રસેશ ગુજરાતી સહિત 4 તબીબોએ બોગસ ડોક્ટરોને અમાન્ય સર્ટિફિકેટ આપી રૂપિયા પડાવ્યા હતા। પોલીસની તપાસમાં 3 ક્લિનિકમાં પ્રેક્ટિસ કરતા શશિકાંત મિશ્રી મહંતો, સિદ્ધાર્થ ક્લિપદ દેવનાથ અને પાર્થ ક્લિપદ દેવનાથ પોલીસને તેમની પાસે BEM સર્ટિફિકેટ હોવાનું બતાવ્યું હતું। જોકે આ સર્ટિફિકેટ રાજ્ય સરકારની કોઈ અધિકૃત યુનિવર્સિટી માન્યતા આપી નથી। આ સર્ટિફિકેટ તેમને ડોક્ટર BK રાવત, ડોક્ટર રસેશ ગુજરાતી, ઇરફાન અને શોભિતે બનાવી આપ્યા હતા અને આ સર્ટી આયુષ વિભાગની રજિસ્ટર્ડ વેબસાઇટ BEMSgujarat.com ઉપર ચેક કરી શકશો। કહી આ સર્ટિફિકેટના આધારે એલોપેથિક દવા આપી પ્રેક્ટિસ કરી શકશો તેવો વિશ્વાસ અપાવ્યો હતો। તેમજ ડોક્ટર રસેશ ગુજરાતી સહિતના 4 જણાએ ઝડપાયેલા બોગસ ડોક્ટરોને સર્ટિફિકેટ રિન્યૂ કરાવવાની અને નહીં કરે તો પ્રેક્ટિસનું સર્ટિફિકેટ કેન્સલ થઈ જશે। પોલીસ અને આરોગ્ય વિભાગને સમસ્યા આવે તો અમોને ફોન કરવો નહીં તેમ કહી ધમકી આપી બળજબરીપૂર્વક પૈસા પડાવ્યા હોવાની કબૂલાત કરી હતી। પાંડેસરા પોલીસ કોઈપણ પ્રકારની ડિગ્રી વગર એલોપેથિક દવાનો જથ્થો રાખી સારવાર માટે આવતા દર્દીઓને આપી તેમના આરોગ્ય સાથે ચેડા કરતા 3 બોગસ ડોક્ટર તેમજ તેમને BEMS સર્ટિફિકેટ બનાવી આપી પૈસા પડાવનાર ડોક્ટર રસેશ ગુજરાતી સહિત 14 આરોપીઓ સામે ગુનો દાખલ કરી તપાસ હાથ ધરી છે। સુરત ઝોન 4 ની બોગસ ડિગ્રી મામલે મોટી કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે। 14 જેટલા બોગસ ડોક્ટર ઝડપાયા છે। પોલીસ તપાસ દરમિયાન અન્ય બોગસ ડોક્ટર મળી આવે તેવી શક્યતા છે। આ તમામ પાસે 1200 જેટલી બોગસ ડિગ્રીના ડેટા પણ મળી આવ્યા છે। BHM.com ગુજરાતની વેબ પોર્ટલ बतावी रजिस्ट्रेशन करता था। सूरत शहर में माननीय HM सर, DG सर और CP सर इनके निर्देशन से जो फर्जी डॉक्टर हैं जो बिना डिग्री के या गलत डिग्री के साथ में प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन मिला कि पांडेसरा पुलिस स्टेशन विस्तार में 3 डॉक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन मिला कि वो उनकी डिग्री फर्जी है और यहाँ पे वो एलोपैथिक दवाओं की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आरोग्य विभाग की टीम के साथ में शशिकांत मिश्री महतो, ये एक प्रिंस क्लिनिक करके चलाता है, दूसरा सिद्धार्थ कालीपद देवनाथ और तीसरा डॉक्टर जो है वो पार्थ कालीपद देवनाथ, ये तीनों डॉक्टर हैं। ये पांडेसरा विस्तार में एलोपैथिक दवाओं के साथ में प्रैक्टिस करते थे। तो आरोग्य की टीम के साथ में इनके यहाँ पे पुलिस की टीम गई और जब इनकी डिग्रियों की मांगी गई इनसे डिग्री तो इन तीनों ने BEMS की डिग्री बैचलर ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल साइंस इसका एक सर्टिफिकेट दिया और इसका फुल फॉर्म उन्होंने अपने हिसाब से बताया कि ये सर BEMS जो है वो बेसिक ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल साइंस है। और बाद में जब आरोग्य की टीम ने बताया कि इस तरह की कोई डिग्री गुजरात सरकार के द्वारा अधिकृत कोई भी विभाग नहीं देता है, ये डिग्री है वो बोगस है, तो डॉक्टर से पूछताछ की गई कि आपने ये सर्टिफिकेट है ये कहाँ से लिया। तो उन्होंने बताया कि यहाँ रसेश गुजराती करके हैं डॉक्टर और वो लंबे टाइम से ये जो है बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जिनको उन्होंने इस तरह की डिग्री दी है। और उसके बाद में जब इन तीनों डॉक्टर से पूछपरछ करने के बाद में उनका स्टेटमेंट रिपोर्ट किया गया, जो वहाँ से मिला वो एलोपैथिक दवाई है वो पंचनामा में रख के और कब्जे किया गया। उसके बाद में रसेश गुजराती को यहाँ पे जाके उससे पूछताछ की गई और सर्च की गई। तो वहाँ पे भी जब रसेश गुजराती के यहाँ पे उसके ऑफिस में गए तो बालाजी कृपा सोसाइटी पालनपुर जगात नाका रामदेव रोड पे रहता है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स मिले, आई कार्ड के साथ में इस तरह के सर्टिफिकेट मिले 7, खाली सर्टिफिकेट जो प्रिंट करने के लिए थे वो 5 मिले, अलग अलग सर्टिफिकेट उनकी जीरोक्स 15 मिली और मेंबरशिप रिन्यूअल के फॉर्म 8 मिले। तो डॉक्टर से पूछताछ की गई कि आप ये BEMS का सर्टिफिकेट या डिग्री ये किस तरह से देते हो, किस तरह से ट्रेनिंग करवाते हो। तो रसेश गुजराती ने अपने स्टेटमेंट में बताया
कि वो पहले यहाँ गुजरात में 90s में उसने DHMS का कोर्स किया और पहले एक दो ट्रस्ट के साथ में लेक्चरर तरीके काम किया। होम्योपैथी में उसने लेक्चरर बना, फिर एक ट्रस्ट के कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल बना, फिर प्रिंसिपल बना। उसके बाद उसने धीरे धीरे उसमें ज़्यादा उसको बेनिफिट नहीं हो रहा था, तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में उसको पता लगा और रसेश गुजराती शार्प है तो उसने इसके बारे में स्टडी किया। तो उसको पता लगा कि भारत सरकार या राज्य सरकार कोई भी इसके बारे में किसी तरह का रूल है वो कोई पब्लिश नहीं किया हुआ है, कोई रूल रेगुलेशन से इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो है वो बाहर है। तो इसने एक अहमदाबाद के डॉक्टर हैं BK रावत, उनके संपर्क में आया ये। फिर इन दोनों ने मिलके पहला जो इनिशियल कुछ लड़कों को 5-7 लड़कों को जिसका नाम इनको भी नहीं पता है, उनको प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में बताया। 3 साल का कोर्स था पर लगभग 2 साल में इन लोगों ने उनको ट्रेन किया और इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवाई देना, क्या क्या रोग का उपचार हो सकता है वो सिखाया। जो 4-5 डॉक्टर को इन्होंने बना के मार्केट में भेजा तो उनका अनुभव ये आया कि कोई भी आदमी, पब्लिक के जो लोग हैं, वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवा लेने के लिए कोई भी पेशेंट नहीं आता है, ट्रीटमेंट कोई करवाता नहीं है और दवा जो है उसका इफेक्ट बहुत धीरे धीरे होता है। तो इस वजह से वो जो डॉक्टर मार्केट में जब गए तो उनको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला। तो इन लोगों ने बाद में अपनी स्ट्रेटेजी 2002 के बाद में इन्होंने अपनी चेंज की और इन्होंने जितने भी लोग थे जो कोई किसी डॉक्टर के यहाँ काम करता था, बाहर का व्यक्ति, उन लोगों से संपर्क करना चालू किया। इन्होंने उनको कि आप हमें 70,000 रुपये दीजिए, हमारा आयुष डिपार्टमेंट जो गुजरात का है उसके अंडर में हमारा बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी गुजरात ये रजिस्टर्ड है और ये अहमदाबाद में है। इसके अंडर में हम आपको ट्रेनिंग करवाएंगे और उसकी डिग्री देंगे। ये ट्रेनिंग 2.5 साल की ट्रेनिंग देंगे, ये सब महज दिखावा था। इनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ट्रेनिंग देने का, सूरत में भी नहीं है, अहमदाबाद में भी नहीं है। ये 70,000 रुपये किसी से 60, किसी से 70, मौका मिला तो 80 भी अलग अलग आदमियों से लेते थे। लेने के बाद में उनको 10 से 15 दिन में वो डिग्री प्रिंट करके ये लोग दे देते थे और साथ में रसेल जो है वो यहाँ पे उनको गारंटी देता था कि तुम लोग कहीं पे भी जाओ, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेद जो प्रैक्टिस तुम्हें करनी है तुम आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। SMC, पुलिस, आरोग्य ये कोई भी तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं डालेगा, इसकी मेरी जिम्मेदारी है। तो ये उनके बीच बीच में घूमता रहता था और उनको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ये लोग प्रिंट करके देते थे कि ये हमारे बोर्ड का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, इसके बाद में आप अधिकृत हैं कहीं पे भी प्रैक्टिस करने के। तो वो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी ये लोग रखते थे कि जैसे 1 साल की वैलिडिटी का दिया तो उसके रिन्यूअल के बहाने से 5,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक ये पर डॉक्टर का 1 साल का वसूलते थे। और उस कोई डॉक्टर अगर ना बोले कि मैं ये नहीं दे सकता हूँ या कोई जांच पड़ताल करने की कोशिश करे तो उसको अलग अलग तरीके से ये लोग धमकाते थे। अभी एक डॉक्टर आया है जिसको तो इन्होंने कि तुम्हें मार देंगे इस तरह की धमकियां भी दी है। पर इनिशियल फेज में ये लोग प्रशासन का, आरोग्य विभाग का इस तरह का नाम लेके कि तुम्हें बुक करवा देंगे, इस तरह की धमकी देके ये अपनी एनुअल फीस वो कलेक्ट करते थे।